Welcome students. Today we are going to continue with the chapter number 7, permutation and combination. So till now, till this particular point we have completed fundamental principle of counting, in which fundamental principle of addition as well as multiplication. Then we went for the permutation. In permutation also we learned so many things, like when all the objects are distinct, correct, in that if repetition is allowed, repetition is not allowed. Then we went for all the objects are not distinct, correct, and we saw so many problems, and we done our exercise 7.3 as well, correct. Today we are going to talk about a topic called as combinations. आज का हमारा टॉपिक रहेगा combinations. So what do we have in the combination? So we already discussed in the starting of this chapter that combination is nothing but the process of selection, correct. When we have to select something out of some given objects, तो उस process को हम बोलते हैं combination. The process of selection is called as combination. For instance, suppose you have a 3 member, correct, and out of those 3 member you want to select only 2. Out of 3 you want to select only 2, है ना. मुझे 3 मेंबर है मेरे पास, जिसमें से मुझे किसी भी 2 मेंबर को खिलाना है. फॉर इंस्टेंस या सिलेक्ट करना है. फॉर इंस्टेंस, इफ आई हैव 3 बॉलर्स अवेलेबल विद मी, 3 फास्टर बॉलर्स अवेलेबल विद मी, एंड आई हैव टू सिलेक्ट ओनली 2 बॉलर, करेक्ट, 2 फास्टर बॉलर ओनली. So in how many ways we can do? So the idea here is to select. In how many ways we can select? So let me say one bowler is X, another is Y, and third one is Z. So in which way I can select? Can I say X, Y? Correct. 2. I have to select only 2. So I can select X, Y. Can I say X, Y and Y, X is a different thing? No. Here order will not matter. Here order does not matter. Means if you say XY or YX, it is going to be same thing, because I am going to select only 2, correct. So if I consider first 2 bowler like this XY, or if I say 2 bowlers like YZ, so it is going to be the same combination. Combination is not going to be changed at all. So how many different combinations we can generate? अगर मुझे 3 में से कोई भी 2 फास्टर बॉलर को सिलेक्ट करना है, सो इट विल बी XY, इट विल बी YZ and it will be ZX. This will be the 3 combination I will have, जो मैं इन 3 में से सिलेक्ट कर सकता हूँ. This will be 3 different combinations I can have from this 3 particular bowler, faster bowler, है ना, selecting only 2 at a time. So हम इसके लिए क्या बोलेंगे? So this is a combination. This is a combination of 3 different bowlers. 3 different, let's say objects कर देते हैं, correct, taken 2 at a time, isn't it? This is what we did somehow in the permutation also. When we understood permutation, we said that this many of the different objects we have and we are taking something at a time. So here also, if you understand this, what we did a combination of 3 different objects taken 2 at a time. And how many objects we got? How many combinations we got? 3 combinations, correct. Now whenever you see in the question like to select a person or to make a committee or to constitute something, so those kind of questions always gives us the idea that we are supposed to solve the combination, correct. But there are few questions, जैसे कि आप अगर नोटिस करोगे तो हमारे पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है which does not say anything about the selection or anything like that, any synonyms word of selection, but still those are the problem of combination, correct. I'll take up some example from the textbook only. Suppose let's say I have one question or something like this from the textbook only, that there are 12 persons in a room, and what we want to do is we want to make sure that those all 12 person shakes hand with each other, handshakes, correct. So there are 12 persons in a room. In how many ways different handshakes can be formed? How many ways different handshakes can be done?
कितने वे में डिफरेंट डिफरेंट हैंडशेक्स कैन बी डन. इफ समथिंग लाइक दिस, by reading the question you won't get the idea कि हाँ यहाँ पे तो कोई सिलेक्शन है या something like that. We don't get any idea from here. Correct. Now this is one of the very typical problem from NCERT. Correct. Why I am saying typical problem? Because most of the time this kind of questions comes in exam, and those people who watched a movie and they came to know something like this, from that particular point of the time this questions gets even more gets credit. Correct. So how can we solve this kind of a question? So let me say we have 12 persons. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. These are the total 12 persons we have. So one will shake hand with 5th person, 6th person, 7th person, 8th person, even with 2, with 3, with 4, then with 9, 10, 11 and 12. Correct. But at a time only there will be a handshake between two people at a time, in the means that if I take a handshake of first and the 5th person, then 5th and first का भी handshake हो गया. Correct. So how can we understand this? तो यहाँ पे क्या करेंगे? The from 12 person, or we can say combination of 12 persons taken two at a time. Why I said two at a time? Because when you do a handshake, only two hand will be there, na? You will not supposed to do all four hands, na? My two hands and another two hands. That should not be the case. So when we considered about a handshake, different handshakes, so it will be a combination of 12 person taken two at a time. So this is how the handshake should be done. Correct? Are you getting me? We'll generate a formula. Don't worry. Now suppose we have something another like this. Correct? Next, let me take one more kind of this example. Okay, let's say we have 7 points on a circle. 7 points on a circle. How many different chords are possible using 7 points on circle? Correct. Okay, we have a circle and on the circle we have 7 points. Let me say something like this: 1 2 3 4 5 6 and 7, and let me call it as A B C D E F and G. These are the 7 points we have on the circle, and we know, what do we know? That to make a chord we need at least 2 end points. We need 2 points to make a chord like this: AG, AF, AE, AD. करेक्ट, AC, AB, ऐसे फिर G से B, G से A ऑलरेडी आ गया. देखो, that should not be repeated as we talk here also. If I do a handshake with 1 and 5th person, first and the 5th person, so वो दोनों का different order में count नहीं होता. They will be considered as a single element. Same way A से G chord बना तो G से A का chord भी बन गया. Those cannot be considered as a different chord. It is the same, simple, एक ही chord consider होगा. So यहाँ पे भी क्या बोलेंगे? Combination of, it is a combination of what? 7 different objects. Combination of 7 different objects taken 2 at a time. Taken 2 at a time. Correct. Now if we somehow get to reduce our given question into this format, कि भाई इतने object है and we are taking this much at a time, then it will be easy for us to solve a problem. So let me generalize this, that combination of n different object, combination of n different objects. Why I said different? Because I am considering all the words are separate. Correct, distinct है सारे. Combination of n different objects taken are at a time. Are at a time will be NCR. Will be NCR. So if you look at this problem, तो क्या होगा ये? 12C2. Sorry. If you look at this problem, तो कितना आएगा? 7C2. Are you getting it? So this is how we are supposed to find combination of n different objects taken R at a time. Now based on this,
we'll see few more criterias, but before that I want you to pause the video and note it down. Now as we got this NCR, we want to get the formula of NCR. Now how we are going to get, let's try to take an example. We'll consider one example. Suppose we have 4 letters A, B, C and D, and we want to take 2 at a time. Correct. I have 4 words or 4 letters A, B, C, D, and I want to take 2 at a time. So as per this concept, this will become simply 4C2. But we don't know how we want to, we have to calculate this. Correct. Now to do that, what I can do, let's try to observe. If I have to select any 2 at a time, correct. So I can say AB, I can say AC, then I can say AD, then BC, BD and CD. How many total combinations we got? 6 combinations we got. Correct. For what kind of questions? When we have 4 objects taken 2 at a time. So what we can say? 6 combinations of 4 different objects taken 2 at a time. That means I got 4C2 equals to 6. But still this is not the formula. This is the value which I got by simplifying like this. How can we get to the formula? So let's try to get into the detail of this. Now I got to know that I have total 6 combinations. Correct. Now if you observe, each combination has 2 factorial arrangement. Now why I said arrangement, that is I am going for permutation. Correct. Means this combination has way of arranging 2 ways: AB, BA, BC, CB, CD, DC, BC, CB. Correct. Oh sorry, here it is BD. Correct. Simply AC, CA, AD, DA. तो हर एक के 2 फैक्टोरियल जितने अरेंजमेंट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? परम्यूटेशन 4C2 into 2 factorial. Total permutations. Correct. I hope you are getting me. वापस से समझाऊंगा, डोंट वरी. टोटल परम्यूटेशंस कितने मिले? 4C2 into 2 factorial. लेकिन सर आपने तो ऐसा सिखाया था ना कि टोटल परम्यूटेशन जब फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड करोगे? सपोज आपके पास 4 ऑब्जेक्ट है और आपने उसमें से 2 लेने हैं, तो वी कैन सिंपली कैलकुलेट 4P2. एम आई राइट और नॉट? करेक्ट. तो 4P2 अगर आप कैलकुलेट करो कितना आएगा? तो कि भाई 4 factorial divided by 4 minus 2 factorial. Correct. So this will become 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial, get cancelled, and 4 3s are 12. Here I know that 4C2 is 6. Here, so 6 into 2 is 2 factorial is 2, so 6 2s are 12. So I get to know that these 2 are equal. These 2 are इक्वल. यानी कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि 4P2 इज इक्वल टू 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल. करेक्ट. कब? जब हमने 4 लेटर में से 2 एट अ टाइम लिए तब. नाउ लेट्स इंक्रीज द वैल्यू. लेट मी से आई हैव नाउ 5 लेटर्स. जस्ट फॉर इन केस मैं यहां पे से ये सब रफ करता हूं, सो दैट वी कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. करेक्ट. अब छोटी छोटी चीजों में ही चेंजेस करेंगे. लेट्स से कि 4 में से हमने 3 ले लिए. लेट्स गो विद दैट ओनली. 4 में से 3 कॉम्बिनेशंस. करेक्ट. तो कैसे कैसे बनेंगे? तो लेट्स से ABC, सेकेंड विल बी ABD, देन BCD, ओनली 3. करेक्ट. 4C3 है ना. 4 में से 3 लेटर्स के कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? तो क्या भाई 4 ABC, ABD, ABD, then BCD, BCD. Is there any another combination possible out of this? No. फिलहाल हमें नहीं दिख रहा है. Correct. So I will say that 3 combinations of 4 different objects taken 3 at a time. Correct. Yes. There will be one more, that is ACD. Correct. So कितने मिलेंगे? 4 combinations मिलेंगे हमें taken 3 at a time. So 4C3 is equals to 4. करेक्ट. नाउ अप्लाई द सेम कंसेप्ट. व्हाई आई सेड सेम कंसेप्ट? तो क्या हमने यहाँ देखा कि ईच कॉम्बिनेशन में 2 अरेंजमेंट थे. क्यों? क्योंकि 2 ही लेटर थे ना, A B B C C A ऐसे, तो 2 अरेंजमेंट ही हुए. नाउ इफ यू लुक हियर, हाउ मेनी अरेंजमेंट इज देयर? 3 फैक्टोरियल. हाउ मेनी अरेंजमेंट इज देयर?
3 factorial. So here I will consider this as 3 factorial. I will say 4c3 into 3 factorial, and this will be equals to 4p3. So I got 4c3 into 3 factorial equals to 4p3. You can check the value. 4p3 यानी कि 1 आ जाएगा, correct? And this will become 4 factorial itself. 4c3 कितना मिला हमें 4, और 3 factorial यानी कि 6. Let me rub this. 4c3 कितना मिला 4 into 6 24, and here it will be 4 factorial, so that will be 24 as well, correct? Because यहाँ पे 2 आ जाएगा और नीचे 1, so this will be 24. Again same, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से पैटर्न मिल रही है. I will rewrite that pattern for you. We are getting something like this कि 4c2 into 2 factorial equals to 4p2. फिर हमने जब 3 सिलेक्ट किए तो हमें ऐसा मिला कि 4c3 into 3 factorial is equals to 4p3. यानी कि कैन आई से 4c2 is equals to 4p2 divided by 2 factorial, correct? And what is the formula 4p2? तो कि by 4 factorial divided by 4 minus 2 factorial into 2 factorial. And if I resemble this with NCR, तो क्या मिलेगा हमें n factorial n minus r factorial into r factorial. This is the formula of combination, NCR की formula. This is how we are supposed to generate. And when you look at the permutations problem, now you will get the idea that on the background this is something happening. करेक्ट. जस्ट रिकॉल द प्रॉब्लम. जस्ट सिंपल एक प्रॉब्लम में आपके लिए रिकॉल करवाता हूं. लेट्स से द वर्ड रोज, करेक्ट, एंड यू आर सिलेक्टिंग 3 लेटर्स एट अ टाइम आउट ऑफ 4. तो क्या करते थे हम 4p3 फाइंड करते थे, दैट इज 24. यानी कि टोटल परम्यूटेशन वाज 24. लेकिन व्हाट एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर इज कि फर्स्ट व्हाट वी विल डू, फर्स्ट हम ये करते हैं कि 4 ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, एंड आउट ऑफ दोस 4 ऑब्जेक्ट्स इफ वी मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज वी हैव टू टेक ओनली 3 एट अ टाइम. तो एक ऑब्जेक्ट लेने के 3 ऑब्जेक्ट्स लेने के कॉम्बिनेशन 4c3, और उनको इंटरनली रीअरेंज करने का. यानी कि एक अगर मैंने ऑब्जेक्ट एक मैंने आपका कॉम्बिनेशन सपोज बनाया ROS, दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन. इसके कितने परम्यूटेशंस होंगे, तो कि भाई RSO, करेक्ट, SOR, करेक्ट, SRO. सिमिलरली और भी आएंगे जैसे कि OSR एंड ORS. तो टोटल कितने हो गए 6, यानी कि 3 फैक्टोरियल. तो ये कॉम्बिनेशंस के आइडिया से आपका इस तरह से परम्यूटेशन जनरेट होता है, करेक्ट. When we have a problem of permutation, we'll definitely do this. When we have a problem of combination, we will do this, not this one. If a question says simply find the 4 letters select करो out of 5 letters, तो it's a combination. We are not looking at the way of arranging them. Selection. If it says that कि हाँ उन्हें select करने के बाद arrange करो in this manner, then we have to go for permutation as well. So we know कि at some particular point we will have a problem in which combination and permutation will come together, correct. But फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि this is the formula of combination, and with the help of this formula we are going to solve a problem of combination. Am I clear? Now before we get to the solving part of the problem, we need to understand few points or few remarks और कुछ specific forms जो हम ध्यान रखेंगे, and we'll see 1 or 2 more theorem. This is actually a theorem given in the textbook called as theorem number 5, correct. So don't worry about that, वो आप देखोगे तो पता चल जाएगा. We'll see 1 or 2 more theorem. साथ ही में कुछ small points ध्यान में रखेंगे, but before that, if you want, you can pause the video and note it down. So we got the formula of combination. So let me write it down here. NCR equals to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. We'll keep this in our mind because this is going to be important. And with the help of this, let's try to understand something extra. Now suppose, what does this formula means? That we are selecting n out of n objects taken r at a time. What we are trying to understand here is कि from n different objects we are taking some number of objects at a time. That means we are doing the selection process. Now suppose we have, let's say कि आपके क्लास में 20 students है, correct,
एंड आई वॉन्ट टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ सिलेक्शन जिसमें मुझे 20 के 20 को साथ में सिलेक्ट करना है. आई वॉन्ट टू सी 20 ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम. मेरे पास 20 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, आई एम टेकिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम. दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट NCN. सो व्हाट विल बिकम टू NCN? और पहले तो खुद डायरेक्टली सोचो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट. इफ आई वांट टू सिलेक्ट ऑल ऑफ देम, इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू? ओनली वन वे, है ना, बिकॉज आई डोंट वांट टू लेफ्ट एनीबॉडी. सो देयर इज ओनली वन वे आई हैव, दैट आई वांट टू सिलेक्ट ईच एंड एवरी वन इन द क्लास. सो बाय फॉर्मूला n फैक्टोरियल, n minus n factorial into n factorial. So this becomes 0. So n factorial upon 0 factorial into n get cut. 1 upon 0 factorial, 0 factorial is 1. So only in one way I can do that. एक ही तरीके में हम ये चीज कर सकते हैं, उससे ज्यादा तरीके से नहीं. करेक्ट. सिमिलरली इफ आई वांट टू सिलेक्ट नन ऑफ देम फ्रॉम द क्लास, मुझे क्लास में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू? In that case, it becomes let r equals to 0. So it becomes NC0. So formula के हिसाब से n minus 0 factorial into 0 factorial. So it becomes n factorial upon n factorial, and that is also 1. So both of them are giving me same answer. कौन से same answer आ रहे हैं कि if I want to select all of them at a time, it will be 1. And if I want to select none of them at a time, that will be also giving me 1. This is very important. Correct. इसी तरह से अगर आप और छोटी छोटी चीजों में देखोगे like NC1, so what will be NC1? तो क्या n factorial upon n minus 1 factorial into 1 factorial. Correct. Simple. अब उसी तरह से आप देखो तो क्या NCn minus 1 क्या आएगा? तो क्या n factorial n minus minus plus 1 factorial into n minus 1 factorial. So I got to know that NC1 and NCn minus 1 same. This will get cancelled. n factorial upon n minus 1 factorial into 1 factorial. Correct. तो ऐसे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है जो हम थोड़े से ध्यान में रखेंगे. करेक्ट. बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली वी विल बी एबल टू डू मोर इन द कॉम्बिनेशंस. करेक्ट. लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता है. When I see something like this, this helps us to understand that there are one or two more formulas we can generate. What will be NCn minus r? What will become NCn minus r? So let's see NCn minus r. So if I apply the formula n factorial, n minus minus plus r factorial, n minus r factorial. As you can see, n get cancelled, something like this. So it becomes n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. And if you look at this particular carefully, this is nothing but your NCR. So what we got? That NCn minus r is equals to NCR. To understand this, I went for this one more extra step. Otherwise मैं directly करा था तो थोड़ा सा hesitation होता, but still you can be able to understand के NCn minus r और NCR, this two is going to be equal. Correct. इसी के रिलेटेड एक और कंडीशन है that if it is NCA is equals to NCB, NCA equals to NCB, तो we can say either A equals to B, या तो A और B equal होगा, या फिर A equals to N minus B. Correct. And if you look at this, this is nothing but n equals to a plus b only. यानी कि नीचे के ये जो दो टर्म है उनका सम n के इक्वल होना चाहिए for this condition, या फिर a और b दोनों इक्वल होना चाहिए. Now if you look at this one and this one, you will be feeling like अरे ये तो सेम है. देखो n minus r plus r, what you will be getting? n only, है ना. तो वही हुआ ना, ये दोनों इक्वल. So this is how also this will be equal. So NCn, NC0 1, NC1 and NCn minus 1 दोनों की वैल्यू सेम आएगी. करेक्ट. विल सी आगे जाके क्या होता है, आगे क्यों यही बता देता हूँ. चलो ना. सो कैन आई राइट दिस एज n into n minus 1 factorial and this will be n minus 1 factorial. Both get cancelled. What I got is n. So I can say something like this के NC1 और NCn minus 1 दोनों की वैल्यू क्या आएगी? n आएगी. Why I am doing this? Whenever you see something like this, like 4C3, आज ही हमने देखा अभी तो 4C3 का आंसर 4 आएगा. डायरेक्टली you can think of. Why? Because the number over here is just lesser than 1.
lesser than 1. That will give you direct n as an answer, है ना. Even if I take some big random number like 10C9 तो आंसर 10 ही आएगा. कुछ भी करो, you will get the same thing, है ना. So that is why I am showing you something like this so that you can remember, you can identify कि अच्छा we have this kind of a step in the problem, so we have to solve like this. Correct. To understand this also I can tell you something like this, like 5C2 is equals to 5C3 or vice versa. 5C3 equals to 5C2, doesn't matter. C और 2 इक्वल होने चाहिए, नहीं हो रहे तो क्या इनका एडिशन n हो रहा है. यस, आ गया. देखो n की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 3 करोगे तो 2 आएगा, या 5 माइनस 2 करोगे तो 3 आएगा. somehow they will balance, don't worry about that. करेक्ट. सो जब ऐसा कुछ दिखता है तो हमें आइडिया आना चाहिए कि ओ दिस इज इक्वल. करेक्ट. सो दिस इज हाउ ऑल दिस रिमार्क्स शुड बी कंसिडर्ड. Now I want you to pause the video and note it down, and then we'll go for one more theorem, and then we'll see few examples. Now let's have a look at that theorem, which is theorem number 6. What do we have? It says that NCR plus NCR minus 1 is equals to n plus 1 CR. Now many times students think like sir ये कहाँ से आ गया. That is not your concern, but if you are really interested तो you should be doing research, है ना. After your education you should be doing research, because this kind of things comes out of research. Somebody at some particular moment of the time thought something like this कि what if we do addition of these two number, what will happen, and by doing some practice and trial and error they come to know okay this is the formula. That's why it's set up as a theorem. Correct. It is not something of a one day work or something like immediate work. Correct. It takes time, it takes understanding. Correct. So फिलहाल हमारा जो importance है ये है कि हमें इसे prove करना है. And how are we going to prove? That is why still the formula is present over here. So let me take LHS. NCR plus NCR minus 1, that is n factorial upon n minus r factorial into r factorial divided by n minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial. अब करें तो कैसे करें? हाउ कैन वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम? तो देखो ऊपर n फैक्टोरियल तो मुझे कॉमन दिख रहा है विच आई कैन टेक इजीली आउटसाइड, बट बिफोर दैट लेट मी राइट वन मोर स्टेप. n फैक्टोरियल, देखो r फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल. तो दैट आई विल डू डेफिनेटली r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल. Now this is n minus r and this is n minus r plus 1 factorial. तो I can reduce this only, है ना. So it will be like this, n minus r plus 1 into n minus r factorial into r minus 1 factorial. Now out of these two terms which you feel is common, take it out. क्या क्या आ रहा है? n factorial, r minus 1 factorial, n minus r factorial, and क्या बच गया? तो n गया, n minus r minus 1, so I left only 1 by r plus ये गया, ये दोनों गया, and 1 upon n minus r plus 1. बाहर जो है वो as it is रहने देते हैं, but look at the inside term. Can we take LCM? Definitely. n minus r plus 1 plus r divided by r into n minus r plus 1. So देखो ऊपर r कट हो गया. So what I am left with, pay attention, this is important now. n factorial upon n minus r factorial r minus 1 factorial. बचा क्या? n plus 1 divided by r into n minus r plus 1 factorial. So can I rearrange this in this manner? n plus 1 into n factorial r into r minus 1 factorial. Sorry, here factorial is not there. n minus r plus 1 into n minus r factorial. And this makes
n plus 1 factorial. Why n plus 1? Because we know if we multiply one value bigger than that one, so it becomes that factorial. Similarly, r into r minus 1 become r factorial, and this becomes n minus r plus 1 factorial. But still the justification of n plus 1 cr तो हमारा हो ही नहीं रहा है, तो ध्यान से देखो एक्चुअली हो गया है. इफ यू लुक एट n plus 1 cr तो क्या लिखोगे आप? n plus 1 factorial इसके लिए डिवाइडेड बाय n plus 1 minus r factorial into r factorial. This is same, so this becomes n plus 1 cr. This becomes n plus 1 cr. This is how it is supposed to be done. And sometimes in exam this kind of theorem they may ask. Correct? So don't be in the mindset करे theorem है ना हमें याद रखना है, चलेगा एग्जाम में नहीं आएगा. Don't think like that, because you can understand how important it is to prove this particular theorem, है ना. And when we have a problem something like this ना, तो वहां पे ये conceptual जो हमने अभी यूज किया to solve is very helpful. Correct? But yes, definitely this will be a theorem, so it may be applied directly at some particular point of the time. कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जहां पे हमें डायरेक्टली अप्लाई करने में आ सकता है. जैसे कि फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल दे दूं, लेट मी से 9c5 प्लस 9c4. तो हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये थियरम लगेगा. सो व्हेन द n इज सेम एंड r में ओनली डिफरेंस ऑफ 1, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 10c. नाउ 10c, अब उन दोनों में जो बड़ा, क्योंकि r और r माइनस 1 में जो बड़ा है वो यहां आया, दैट इज 5, सो इट बिकम्स 10c5. दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर थियरम. व्हेन यू सी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ जब हमें दिखेगा तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे इन दिस मैनर. और कैसे कन्वर्ट किया, तो कि n में एक वैल्यू बढ़ानी है और r जो वैल्यू है r और r माइनस 1 उसमें से जो बड़ा है वो. सो दिस विल बी गिविंग आंसर लाइक दिस. इट्स अ पैटर्न, समथिंग यू नीड टू डेवलप व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग, है ना. वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, एज यू वांट यू कैन डू. करेक्ट? बट आई कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस. एज आई टोल्ड यू, n की वैल्यू बढ़ा दो और इन दोनों में जो बड़ा r होगा वो आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऐसे थोड़ी लिखा होगा r r माइनस 1. सो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो यहाँ पे चली जाएगी. सो इट बिकम्स 10c5. इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट, चेक कर सकते हो कि 9c5 और 9c4 का टोटल 10c5 से इक्वल आता है कि नहीं आता है. इट इज अप टू यू टोटली. आप लोग आराम से चेक कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट. करेक्ट? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस थियरम. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट example number 17. So what do we have in 17th one? If NC9 is equals to NC8, find NC17. Now you may be looking at this in a different way. So देखो ये प्रॉब्लम करने के दो तरीके हैं. First, what you can do is you can start simplifying this. So n factorial divided by 9 factorial into n minus 9. Same way n factorial divided by 8 into n minus 8. So n factorial get cancelled. So n minus 8 factorial into 8 factorial divided by 9 into 8 factorial or n minus 9 factorial. Correct? Now n minus 1, n minus 2, n minus 3 ऐसे जाता है. So यहाँ पे हमें ऐसे करना पड़ेगा. This two get cancelled. n minus 8 into n minus 9 factorial divided by this. Oh, definitely this is equals to 1. So this two get cancelled. N minus 8 by 9, that is equals to 9. So n equals to 8 plus 9, that is 17. And if it is 17, तो n की value 17 आई, तो what will be 17c 17? 1. We saw NCN, isn't it? We know that NCN is equals to 1. So this is how it is supposed to be solved. But you can improvise and understand something like this. Can I say this looks like NCR is equals to NC, let me say R की जगह पे NCA equals to NCB. Correct? And we have understood that either A equals to B or N equals to A plus B. Then only these two will be equal. Correct?
This is not going to be satisfied because I can understand 8 and 9 is not going to be equal. So n is equals to 8 plus 9, that is 17. Therefore 17 is 1. Correct. You can do either of the way, है ना. Doesn't matter कि आप कौन सा तरीका कर रहे हो, answer is going to be same, है ना. It is totally up to us, as depending on the question you can think कि मुझे क्या करना चाहिए, and I'm going to leave it for you only, है ना. जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो. करेक्ट. आई होप यू पीपल गॉट मी कि क्या करना है इसमें. सिंपल. चलो, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल नंबर 18. और 18 इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट इन द डिटेल में. करेक्ट. चलो देखते हैं एग्जांपल नंबर 18 में क्या दिया हुआ है. अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड. देखो हमें क्या करना है, सिर्फ कमिटी बनानी है 3 लोगों की फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, है ना. और कितने की कमिटी बनानी है, कमिटी ऑफ 3 पर्सन. करेक्ट. इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कितने तरीके से हम ये कर सकते हैं. एंड हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women. सो ये दूसरा काम है. पहला यहाँ पे एक सीधी सी बात ध्यान में रखनी है. व्हेनेवर वी आर सिलेक्टिंग अ कमिटी, तो जैसे कि सपोज मुझे क्लास में मॉनिटर बनाना है. करेक्ट ना. आउट ऑफ 2 बॉयज आई वांट टू मेक 1 मॉनिटर एंड आउट ऑफ 3 गर्ल्स आई वांट टू मेक 2. चलो उससे पहले ऐसा नहीं रखते. पहले ये सोचते हैं कि सपोज मुझे मॉनिटर बनाना है और मेरे पास 2 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, तो मुझे उन 5 में से 3 मॉनिटर बनाने हैं. कुछ इस तरह से कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मॉनिटर की सीक्वेंस हमने डिसाइड करनी है, वो बात की बात है. बट क्या फर्क पड़ेगा कि पहले मैंने इसे सिलेक्ट किया, फिर इसे सिलेक्ट किया या फिर उसे सिलेक्ट किया. इट डजंट मैटर. मुझे सिर्फ इन 5 में से 3 लोगों को मॉनिटर बनाना है. किसे कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है. इन द सेंस द ऑर्डर डजंट मैटर. करेक्ट. तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या चेक करना है कि आउट ऑफ 2 men and 3 women कितनी कमिटी हम बना सकते हैं 3 लोगों की. तो सिंपल सा ध्यान क्या रखेंगे कि यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डिफरेंट पर्सन टेकन 3 एट अ टाइम. 5 में से मुझे 3 लेने हैं, दैट इज 5c3, यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3, यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 2. सो 5, 4 एंड 3 फैक्टोरियल. दिस इज 3. 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1, दिस गेट कैंसल 2 एंड 5 2 10. करेक्ट. सो मुझे क्या पता चला यहाँ पे कि आउट ऑफ 5 पर्सन जिसमें 2 men है 3 women है, आई वॉन्ट टू मेक अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन एंड दैट आई कैन मेक इन 10 ways. हाउ मेनी वेज, 10 ways. करेक्ट. फिर क्वेश्चन ने थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया है. बोला है हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man. कमिटी कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women. अब ये कैसे करेंगे, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट समझो कि आपके पास कितने मैन हैं, 2 है. मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं कंपल्सरीली, 1. तो कैसे करेंगे, 2c1. करेक्ट. फिर मेरे पास कितनी वुमन है, 3 है. उनमें से कितनी सिलेक्ट करनी है, 2. कितने में करेंगे, 3c2. अब इन दोनों के सिलेक्शन से हमारे 3 मेंबर सिलेक्ट हुए ना, यानी कि ये होगा बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल. इजंट इट. अगर मैं यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल लगा दूं तो या तो 1 सिलेक्ट हुआ या तो 2 सिलेक्ट हुए. हमें तो टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं, 3. तो 1 फ्रॉम द मैन एंड 2 फ्रॉम द वुमन, तो टोटल हो जाएंगे 3. एंड वी विल गो फॉर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल. सो 2c1 यानी कि 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल और 3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. तो ये आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3. सो 3 2 6. करेक्ट. सो मुझे अगर कोई कमिटी बनानी है जिसमें 1 मैन रखना है और 2 वुमन रखनी है, फ्रॉम दिस 2 men and 3 women, तो ऐसी 6 कमिटी बनेगी आउट ऑफ 10 टोटल कमिटीज. 10 टोटल कमिटीज का मतलब कि यहाँ पे 10 कमिटीज ऐसी है जो ये 2 मैन और 3 वुमन में से ही बनाई गई है.
लेकिन उनमें से 6 कमिटी ऐसी है जिसमें 1 मैन है और 2 वुमेन है, तो बाकी की 4 कमिटीज कहां होगी, है ना। इट्स अ गुड काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। सो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें ना, तो मुझे 3 लोगों की कमिटी बनानी है। अब 3 लोगों की कमिटी में मेरे पास 3 केसेस बनेंगे। पहला केस 1 मैन 2 वुमेन, करेक्ट, पहला केस एंड रखते हैं, कॉमा। दूसरा केस 2 मैन एंड 1 वुमन, 2 मैन एंड 1 वुमन। और तीसरे केस में ऑल 3 वुमन, क्योंकि मेरे पास 3 मैन है ही नहीं, करेक्ट। 3 ही लोगों की कमिटी बननी है, 3 से ज्यादा लोगों की कमिटी नहीं बननी चाहिए, है ना। सो 1 मैन और 2 वुमन, 2 मैन और 1 वुमन और 3 वुमन। आर यू गेटिंग? एक सिंपल सा लॉजिक, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 ही मैन है, तो आई कैन नॉट सिलेक्ट ऑल द 3 मैन, सो दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। सो क्या हो सकता है कि या तो तीनों 3 वुमन से एक कमिटी बन सकती है, या फिर 2 वुमन और 1 मैन से, या फिर 2 मैन और 1 वुमन से। इस तरह से 3 केस बने। अब इन तीनों 3 केस में अगर आप कॉम्बिनेशन लगाओ तो क्या होगा, तो 2 में से 1 सिलेक्ट करना है 2C1 इंटू 3 में से 2 सिलेक्ट करना है 3C2, फिर प्लस। वाई आई सेड प्लस, क्योंकि मुझे तीन तरीके कितने मिल रहे हैं कि यहाँ पे 3 मेंबर सिलेक्ट हो गए, वैसे ही इसमें भी 3 मेंबर सिलेक्ट होंगे। कैसे, तो कि भाई 2C2 इंटू 3C1 प्लस 3C3। वाई आई सेड 3C3, क्योंकि तीनों 3 वुमेन एट ए टाइम सिलेक्ट हो जा रही है। ये हो गया था हमारा, ये रहा आंसर 6 आया था, प्लस 2C2 यानी कि एनसीएन 1 होता है 1, एंड 3C1 कितना होगा, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 और 2 यानी कि 3, प्लस 3C3 1। सो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1, दैट इज हाउ योर 10 इज जनरेटेड। कैसे बना, तो कि अगर 1 मैन और 2 वुमन होगी तो 6 कमिटी बनेगी, अगर 2 मैन और 1 वुमन होगी तो 3 कमिटी, और तीनों 3 वुमन की 1 कमिटी, यानी कि टोटल 10 कमिटी इस तरह से बनती है, जिसमें से हमने ये वाला केस सॉल्व किया है, करेक्ट। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया क्योंकि फ्यूचर में, यानी कि इस चैप्टर में हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, करेक्ट। कि आपको बोला होगा कि इतने इतने लोग हैं तो इतनी टीम बनाओ, या इतने की कमिटी बनाओ, या इतने का जो भी है, तो उस तरह में हम ध्यान रखेंगे कि इस तरह से हमें हमारे केसेस कंसिडर करने पड़ सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? बिकॉज दिस इज समहाउ इंपॉर्टेंट, बिकॉज कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे लिए बहुत मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन सब अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है, करेक्ट। आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी। एम आई क्लियर? यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Now let's have a look at example number 19. What does this example gives us? What is the number of ways of choosing 4 cards out from a pack of 52 playing cards? तो कितने नंबर ऑफ वेज है जिसमें हमें 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम अ 52 कार्ड, पैक ऑफ 52 कार्ड्स. सो कॉम्बिनेशन ऑफ 52 different objects taken 4 at a time, that will be 52C4, यानी कि 52 factorial divided by 4 factorial into 52 minus 4 factorial, 52 minus 4. So 52, 51, 50, 49 and 48 factorial divided by 4 factorial into 48. तो ये दोनों कट, करेक्ट. एंड बाय सिंप्लीफाइंग 4 फैक्टोरियल हमें पता है कैसे लिखा जाता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 270,725. 270,725. ये तो सिर्फ हमने क्वेश्चन ही स्टार्टिंग का एक पैराग्राफ रीड किया है. अभी तो बाकी है, बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है. इन दिस क्वेश्चन वी आर सपोज टू फाइंड 5 मोर थिंग्स रादर देन दिस वन. ये तो सिर्फ हमने क्या फाइंड किया कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे 4 कार्ड सिलेक्ट करने के फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. सो ये हमें मिल गया 52C4. अब उसमें
कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इस तरह से, इन हाउ मेनी ऑफ दिस 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। सेम सूट का मतलब हमारे पास यहां पे टोटल सूट आते हैं कौन से, डायमंड, क्लब, स्पेड एंड हार्ट। देखो व्हेन वी हैव, सॉरी नॉट हेल्थ, हार्ट, HERT, करेक्ट। व्हेन वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ कार्ड्स वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास क्या क्या है। तो मैं क्विकली आपको वो थोड़ा समझा देता हूं। वी हैव टोटल 52 कार्ड्स, जिसमें से 26 ब्लैक एंड 26 रेड, करेक्ट। Now out of those 26 black we have 13 spade and 13 club. Out of this 26 red, 13 diamond and 13 heart, correct. Out of this 13 spade there will be 3 face cards. कौन से तो के किंग, क्वीन एंड जैक, ऑल ऑफ देम हैव, ये सबके पास होंगे, करेक्ट। सो इसका मतलब टोटल 12 फेस कार्ड्स। दिस मच यू शुड बी नोइंग एटलीस्ट, इतना तो आपको कम से कम कार्ड्स में पता होना चाहिए। 13 ईच, डायमंड, स्पेड, क्लब एंड हार्ट, 26 ब्लैक, 26 रेड एंड 12 फेस कार्ड्स। ईच हैज 3, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, 3, 3, 6, 9 एंड 12, टोटल 12 फेस कार्ड्स, करेक्ट। एस यानी कि ए लिखा हुआ जो कार्ड होता है वो, दैट इज 1 इन ईच कलर, इन ईच सूट, सो टोटल वो भी 4। सो दिस इज द शॉर्ट ब्रीफ के हमें इस तरह से सारे कार्ड्स में ध्यान रखना है। नाउ द क्वेश्चन सेज that 4 cards are of same suit। इसका मतलब कि या तो चारों चार डायमंड होंगे, चारों चार क्लब होंगे, चारों चार स्पेड होंगे या चारों चार हार्ट होंगे, करेक्ट। सो हमने क्या लिखा, डायमंड, क्लब, स्पेड एंड हार्ट ईच हैव 13 कार्ड्स, thus the combination are, अब यहां पे ध्यान से देखना कैसे होगा कॉम्बिनेशन, तो कि 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। यू मे बी थिंकिंग कि सर आपने प्लस क्यों किया, तो प्लस करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि यहाँ पे हमारे चारों चार कार्ड जो है वो सेम सूट के होने चाहिए, यानी कि चारों चार डायमंड होंगे। अब अगर चारों चार डायमंड है तो देयर इज नो चांस के बाकी का कोई भी उसमें चार में हार्ट हो या क्लब हो या स्पेड हो। अगर चारों चार स्पेड है तो बाकी कोई चांस नहीं, चारों चार क्लब है तो बाकी नहीं, चारों चार हार्ट है। तो यहाँ पे हमने एडिशन इसीलिए किया है कि इन चारों में से कोई भी एक ही केस एट अ टाइम हो सकता है, चारों चार साथ में नहीं आ सकते। दैट इज वाई वी हैव टू ऐड, करेक्ट, कि इधर भी चार सिलेक्ट हो गए बट चारों चार डायमंड थे, ये चार में क्लब है, ये चार में स्पेड है, ये चार में हार्ट है। तो ऐसे कितने टोटल कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जिसमें चारों के चारों कार्ड जो है वो सेम सूट के होंगे, तो दिस मैनी विल बी द टोटल कॉम्बिनेशन जो हमें मिलेंगे, करेक्ट। अब देखो आप चाहो तो डिटेल में लिख सकते हो ये सब के 13 कार्ड्स, देयरफॉर 13C4 ways of choosing 4 diamonds, similarly 13C4 of choosing club, 13C4 ways of choosing spade and similarly 13C4 for the heart. So required combination ये सीधा सीधा हो जाएगा 4 times 13C4, so 4 into 13 factorial divided by 13 minus 4 यानी कि 9 factorial into 4 factorial, so 4 into 13 factorial का 13 12 11 10, 9 factorial से कट 4 3 2 4 4 कट 3 2 6 6 2 12। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने से आपको आंसर मिलेगा 2860। ये आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट। जब मैंने परम्यूटेशंस के प्रॉब्लम कराए थे तब भी मैंने कहा था ये कैलकुलेशन इज योर वर्क, आप लोग करो बैठ के। सेकंड,
सेकंड में ऐसा कहा है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, मतलब कि अब मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन चाहिए जिनमें चारों 4 कार्ड जो है वो अलग अलग सूट में से हो, यानी कि एक डायमंड का, एक क्लब का, एक स्पेड का और एक हार्ट का। यानी कि यहां पे मेरे लिए रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन कितना होगा, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन सिलेक्टिंग वन एट अ टाइम फ्रॉम द ईच सूट, तो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ तो प्लस कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बच्चों ध्यान से, हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 4। तो जब मैं यहाँ पे सेम सूट में से चारों 4 कार्ड ले लो तो मेरे पास तो वो फुल पैकेज हो गया ना, अब उसमें हम बढ़ा नहीं सकते। तो वो डायमंड के, उसमें ऐड होंगे क्लब के, उसमें ऐड होंगे स्पेड के और उसमें ऐड होंगे हार्ट के, यानी कि चारों 4 का कॉम्बिनेशन में ये आया होगा, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, साथ में कोई नहीं आ सकता। जबकि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, चारों 4 कार्ड जो है वो चारों 4 अलग अलग सूट्स में से आने चाहिए, यानी कि डायमंड में से एक, क्लब में से, स्पेड में से और हार्ट में से, सब में से एक एक ही आने चाहिए। तो एक 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 ऐसे मिला के देखो टोटल 4 कार्ड हुए। अब टोटल 4 कार्ड हुए तो ये सब तो एट अ टाइम होना चाहिए ना, तो इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में जा रहा है। और इसकी वजह से अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको ईच वैल्यू विल गिव 13 13 13, सो बेसिकली इट विल बिकम 13:4। इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, चलेगा, करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कहा वैसे बहुत सारे केस है, अभी तो हमने सिर्फ 2 देखे, वी स्टिल हैव टू गो फॉर 3 मोर, है ना। लेट्स सी द थर्ड वन। थर्ड वन में क्या बोला है, थर्ड में बोला है आर फेस कार्ड, तो देयर आर 12 फेस कार्ड्स, करेक्ट। तो क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम। क्योंकि यहां पे ऐसा थोड़ी बोला है कि इस पर्टिकुलर सूट का फेस कार्ड आना चाहिए, इसका नहीं आना चाहिए। हमें तो इतना ध्यान देना है, टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड होंगे, उसमें से 4 आने चाहिए, क्योंकि सिंपली क्वेश्चन है आर फेस कार्ड्स, सो एट अ टाइम इज 12C4, यानी कि 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 12 माइनस 4 8 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 11 10 9 डिवाइडेड बाय 4 3 2 1, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई वगैरह सब करोगे तो इसका आंसर आएगा 495। भाई मैं आंसर कहीं और से नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में से लिख रहा हूं, करेक्ट। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर गलत होगा तो मैंने भी गलत ही लिखा होगा, डोंट वरी, है ना। इसका क्या मतलब है कि आपको खुद से सॉल्व करके चेक करना है, दैट इज व्हाट इट मींस, सिंपल, है ना। आप एग्जाम में थोड़ी ना टेक्स्ट बुक लेकर बैठे होंगे, मैं एग्जाम नहीं दे रहा बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूं क्या करना है। फोर्थ वन, 2 आर रेड, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। अब 2 रेड होने चाहिए और 2 ब्लैक। सो हमें जैसे देखा ऊपर 12 फेस कार्ड है, तो देयर आर 26 रेड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स आर देयर तो नहीं लिख सकते, देयर आर तो करके लिखा है। 26 रेड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स फ्रॉम, ओके फ्रॉम नहीं लिखते तो क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 26 different objects taken 2 at a time from red as well as black cards। अब यहां पे भी क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि एक 26C2 दूसरा भी 26C2, तो क्या इन दोनों में ऐड करें, नहीं, हमें टोटल तो 4 कार्ड चाहिए ना, तो इनमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 4 कार्ड्स आएंगे, 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के। तो ये क्या हो गया,
2 टाइम्स 26, डिनोमिनेटर तो यहाँ कभी आता ही नहीं है, C2, सो 2 इंटू 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल। ये थोड़ा सा इजी लग रहा है कैलकुलेट करने में, करेक्ट। 2 इंटू 26 इंटू 25 डिवाइड बाई 2, 2 कट, 26 इंटू 25 जो भी आता होगा वो आप लोग कैलकुलेट करके लिख लेना, विच विल बी कमिंग आउट एज 10, कुछ ज्यादा ही बड़ा आ गया, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। बुक में शायद कुछ गलती हुई है, बिकॉज उन्होंने ना यहाँ पे कुछ स्क्वायर करके सॉल्व कर दिया है। द रिक्वायर्ड 26C2, oh sorry, my bad, this is 26C2 का स्क्वायर, दिस इज नॉट इन एडिशन, दिस इज स्क्वायर। सो यहाँ पे ये 2 वगैरह कुछ कट नहीं होगा भाई, इसको छोड़ो, है ना। आप 26C2 का स्क्वायर करो एंड इट विल बी कमिंग आउट एज 105,625। सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक कि मैंने ट्वाइस लिख दिया। x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, 2x नहीं होता है ना। समटाइम्स आई कैन ऑल्सो डू दैट काइंड ऑफ मिस्टेक्स, डोंट वरी। और लास्ट वाले में बोला है कि कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। क्या बोला है? कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, यानी कि चारों चार कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। देखो पहले हमने देखा था ना, तो सेम सूट बोला था, यानी कि डायमंड के ही चारों चार या हार्ट के ही या फिर स्पेड या क्लब। अब सेम कलर बोला है, सेम कलर का मतलब हमारा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन होगा 26C4 प्लस 26C4, दैट विल बी 2 टाइम्स 26C4। अब तो सही है, डोंट वरी, करेक्ट। नाउ व्हाई वी सेड एडिशन अगेन, तो क्योंकि चार कार्ड्स या तो रेड होने चाहिए या फिर चारों चार ब्लैक होने चाहिए। तो रेड में से हमने 4 सिलेक्ट कर लिए तो बात खत्म, या फिर ब्लैक में से चारों चार होने चाहिए। तो ये दोनों हमारे सेपरेट कॉम्बिनेशंस है ना, चारों चार रेड वाले कॉम्बिनेशंस और चारों चार ब्लैक वाले कॉम्बिनेशंस, उन दोनों को मिला के हमारे चारों चार सेम कलर के कितने कॉम्बिनेशन हुए? 2 टाइम्स 26C4। अब इसे कैलकुलेट कर लो। सो 2 इंटू 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22 फैक्टोरियल, और इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 29,900। दिस विल बी योर आंसर। आर यू गेटिंग? सी देखो, यही एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें कितना टाइम लग गया, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ द प्रॉब्लम के जो आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करता है फॉर कॉम्बिनेशन, करेक्ट। सो आई गेस we'll stop here only for the day, and in the next class we will be starting exercise 7.4. so as usual I am always saying this कि अगर आपको सब समझ में आता हो तो प्लीज मुझे आपका फीडबैक दो by pressing a like button, and thank you so much for watching.